हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी Coulomb's law. This law is very important. Actually, this is the foundation of the electrostatics. Okay. So what is Coulomb's law? Coulomb is the name of the scientist which who gave the force of interaction between 2 point charges. So we can define according to Coulomb's law. According to Coulomb's law, according to Coulomb's law, the force of we can write interaction means attraction or repulsion between 2 point charges. Remember that Coulomb's law is defined for 2 point charges only. According to Coulomb's law, the force of interaction means attraction भी हो सकता है और repulsion भी हो सकता है. Interaction means मतलब दोस्ती भी हो सकता है और दुश्मनी भी हो सकता है. Between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of separation between charges. Okay, now you can see this definition. According to Coulomb's law, the force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the product of charges, or you may write product of magnitudes of charges, and inversely proportional to the square of separation between charges. Okay, देखिए समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है. सपोज दैट दिस इज द पॉइंट चार्ज, this is the plus q1 and this plus q1 is separated by distance plus q2 and obviously प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है. माइनस में भी रिपल्सन होता है एंड प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. तो q1 q2 को रिपेल करेगा, भगाएगा, धकेलेगा इन दिस डायरेक्शन. लेट दिस फोर्स इज F21 वेक्टर फॉर्म में, बिकॉज फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा. F21 मीन्स फोर्स ऑन 2 बाई द 1. F21 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई द चार्ज 1. Okay, now same as q2 will also repel it in this direction and we called it F12. This force is called as F12, force on charge 1 by the charge 2. So simple, very simple. And suppose that this q1 is negative charge and this q2 is positive charge, then what will happen? Attraction. Okay, attraction. That means q2 will attract minus q1 in this direction, and we can
let it F12, force on charge 1 due to charge 2. And what we call it, this force on charge 2 by the charge 1. अट्रैक्शन को ऐसे दिखाएंगे, रिपल्सन को ऐसे दिखाएंगे. दिस इज द रिपल्सन, दिस इज द रिपल्सन, ओके, एंड दिस इज द अट्रैक्शन, 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 दिस इज द रिपल्सन एंड दिस इज द अट्रैक्शन. ओके, तो कुलम्ब्स ने क्या बताया? कुलम्ब्स ने बताया इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया. ओके, एक्चुअली मैग्नीट्यूड के बारे में बताया. तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मीन्स मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मीन्स मैग्नीट्यूड कह सकते हैं हम. और यू मे डिफाइन दिस अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ऐसे भी कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज. ओके, मैग्नीट्यूड के बारे में बताया. सो मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे? F12 का मैग्नीट्यूड F21 का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा. लेट इट F. वाई इक्वल? बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर. जितना फोर्स से Q1 Q2 को धकेलेगा, रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स से Q2 भी Q1 को उधर की तरफ धकेलेगा. एक्शन रिएक्शन होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेज. मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है क्या, डजेंट मैटर. सपोज दैट ए 1 कूलम है और ए 20 कूलम है, तो जितना फोर्स से 20 कूलम 1 कूलम को धकेलेगा ना, उतना ही फोर्स से 1 कूलम भी 20 कूलम को धकेलेगा. दैट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा, बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा वाई इट इज एक्शन रिएक्शन. दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेज Q1 Q2 and inversely proportional to the square of separation between charges, like that, R square, inversely proportional to the square of separation between charges. Actually this is the Coulomb's law. Coulomb's law is nothing, F is equal to Q1 Q2 over R square. Okay, now we can write F is equal to, what we do to omit the proportional sign? Just we multiply a proportional constant, and specifically here this proportional constant is called the Coulombic constant. And यहाँ पे जो constant आएगा वो Coulombic constant होगा C times Q1 Q2 over R square. आप इसको K भी बोल सकते हैं, बहुत सारे बुक में K भी बोला जाता है, बट K हम इसलिए नहीं बोलते हैं बिकॉज K से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. हियर C क्या है? C इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. C इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. दिस इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. C इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और यू मे कॉल इट Coulombic कांस्टेंट. Coulombic कांस्टेंट, और इसको क्या बोल सकते हैं हम? Coulombic कांस्टेंट बोल सकते हैं. ओके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? Coulombic कांस्टेंट बोल सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या आ गया? F इज इक्वल टू C टाइम्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. ओके, नाउ C डिपेंड्स ऑन द मीडियम. रिमेंबर दैट C डिपेंड्स अपॉन मीडियम मीन्स दोनों चार्जेज कहाँ पे रखा हुआ है? दोनों चार्जेज एयर में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, मिल्क में रखा हुआ है, केरोसिन में रखा हुआ है. दोनों चार्जेज कहाँ रखा हुआ, उस पे C का वैल्यू डिपेंड करेगा. तो फर्स्ट केस में अगर दोनों चार्ज एयर में रखा हुआ, इन दैट केस C एयर का वैल्यू क्या होता है? C एयर का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई ओनली क्या होगा? एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा. ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन 0. दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन 0. ओके, एप्सिलॉन 0. इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे
एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो, ओके। एप्सिलॉन नोट भी पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नोट पढ़िए, एप्सिलॉन जीरो पढ़िए। एंड टेक्निकली इट इज कॉल्ड परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर और फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, और यू मे कॉल इट वैक्यूम, वैक्यूम, ओके। एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ एयर होता है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है, क्या होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू याद रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एंड इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे होगा अभी बताते हैं आपको, ओके। जस्ट अभी याद रखिए आप, एयर के लिए सी एयर का वैल्यू 1/4πε0 होता है, एंड इसका भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसको आप याद रखेंगे, वेरी वेरी यूजफुल, 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, सी एयर का वैल्यू होता 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ओके। सी एयर का वैल्यू होगा 1/4πε0, एंड उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ओके। सो सिंपल, अभी तक बिल्कुल सिंपल है। नाउ व्हाट कैन वी राइट further? F air means force of interaction between two charges in air, that means क्या लिख सकते हैं हम, F air क्या लिख सकते हैं हम, C air Q1 Q2 over R square, and value of C air is 9 into 10⁻⁹, that means we can write 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ओके। ए फेयर का फार्मूला आ गया, ए फेयर का फार्मूला आ गया। दैट मीन्स अगर 2 पॉइंट चार्जेज अगर एयर में रखा होगा तो उन दोनों के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा, वी कैन फाइंड बाई दिस फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। 1/4πε0 का वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, ओके। तो अब देखिए C एक्चुअली क्या है, C कूलम्बिक कांस्टेंट, तो C अगर आप यहाँ से फाइंड करेंगे C, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। C एयर, चलिए C एयर मान लेते हैं, 1/4πε0, ओके, 1/4πε0। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, C एयर का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा, ओके। जब आप एप्सिलॉन जीरो निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एप्सिलॉन जीरो का यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो 4π इज द यूनिटलेस, 4π इज द यूनिटलेस, पाई इज द यूनिटलेस, सो 4π इज द यूनिटलेस। तो एप्सिलॉन जीरो का यूनिट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1/4πε0 इक्वल टू दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो एयर के लिए सी एयर 1/4πε0 होता है। नाउ जब दोनों चार्जेस को मीडियम में प्लेस कर देंगे, दोनों चार्जेस को कहाँ प्लेस कर देंगे, मीडियम में। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। दोनों चार्जेस को अगर मीडियम में प्लेस कर देंगे तब दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा, दैट मीन्स कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ओके। तो कुछ नहीं करेंगे, सेकंड में देखिए हम हेडिंग लगा रहे हैं मीडियम के लिए, मीडियम के लिए
मीडियम के लिए ओनली किसका वैल्यू चेंज होगा? सी मीडियम। सी मीडियम का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। सी मीडियम का फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, नोट एप्सिलॉन 0। अगर एप्सिलॉन 0 आप लगा दिए तो आप कहाँ चले जाएंगे? एयर में चले जाएंगे। हियर एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम परमिटिविटी। इसको बोलेंगे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन को बोलेंगे, दिस इज नोन एज द एप्सिलॉन। जस्ट सिंपली क्या इसको रीड करेंगे? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ क्या आ गया? मीडियम आ गया। ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जनरली एप्सिलॉन का वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं गिवन होता। तो न्यूमेरिकल में क्या गिवन होता? रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होता। ओके, नाउ व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता? एप्सिलॉन आर होता। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर विच इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन 0। परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ एयर ओवर परमिटिविटी ऑफ क्या कर देंगे? ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी जनरली गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? परमिटिविटी गिवन नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। क्या गिवन होगा? रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल क्या हो गया? एप्सिलॉन आर हो गया। तो एप्सिलॉन आर का फार्मूला क्या हो गया? एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन 0। देखिए, तो सी एयर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है। देखिए, एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो गया? एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन 0। आप यहाँ से एप्सिलॉन निकालेंगे तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। ओके, तो सी मीडियम का फार्मूला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब आप एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सी मीडियम इक्वल टू क्या आ गया? सी मीडियम का फार्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। सो सिंपल। सी मीडियम का क्या फार्मूला आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो सी मीडियम इज इक्वल टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट। सी मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर आ गया। Thus we can write force in medium. So we can write force in medium. That means when two charges placed in any medium like water, milk, kerosene, petrol, etc. and दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? F medium is equal to C medium times Q1 Q2 over R square, and C medium is what? C medium is 1/4 pi epsilon 0 into epsilon R. So the final formula is and very very important, very important है ना। इस फार्मूले को स्टूडेंट रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है, कैसे आया आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। आप देखिएगा क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, आईटी मेंस, एडवांस, नीट, एससी वर्मा सबका कराएंगे। धीरे धीरे सीखते जाइए आप। एफ मीडियम इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सो सिंपल। तो जनरली क्या हमें गिवन रहेगा? रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहेगा। क्या गिवन होगा? रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहता, परमिटिविटी नहीं गिवन होता। अगर परमिटिविटी दे दे तो फिर कैसे बनाएंगे? परमिटिविटी अगर दे दे तो फार्मूला सी मीडियम से बनेगा, एंड
उस केस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में भी क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस बनाने का जो हैबिट होता है ना, इसी फार्मूला से होता है। रिलेटिव परमिटिविटी ना दे करके परमिटिविटी दे दे। ओके, जैसे सपोज दैट एयर का परमिटिविटी कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, तो किसी वाटर का परमिटिविटी दे दे 6.023 इंटू 10⁻⁻, लाइक -10 -11 ऐसा कुछ दे दे। ओके, तब आप कैसे बनाएंगे, तो आप इस फार्मूला को आप नहीं लगाइए, इस फार्मूला को अप्लाई नहीं कीजिए, तो फिर कैसे बनाएंगे, सी मीडियम से बनाएंगे। सी मीडियम इजकल टू 1/4πε, इसका वैल्यू दे दे तो इस फार्मूला से बनेगा। कैसे, एफ मीडियम इजकल टू 1/4πε इंटू Q1 तो देगा ही, Q2 देगा ही, एंड R भी देगा, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। बट जनरली आप क्वेश्चंस बनाएंगे बुक में ना, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं देता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम देता है, वो दे देगा, आपको याद रखना नहीं है। एंड प्योर वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 80 होता है। ओके, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन से इसको आप समझ सकते हैं। सपोज दैट हियर 10 कूलम चार्ज एंड हियर 2 कूलम चार्ज एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इजकल टू 2 मीटर एंड एयर में रखा हुआ है, तो दोनों के बीच कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। सो सिंपल, F इजकल टू 1/4πε, क्या लिखेंगे फार्मूला, 1/4πε0 लिखेंगे, एंड Q1 Q2 ओवर R², ऐसा। एंड इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 2 20 ओवर R², 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। इसको सोल्व कर देंगे, इतना न्यूटन। सपोज दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेम टू चार्जेज को अगर हम कहाँ पे रख दें, वाटर में रख दें, वाटर में सेम टू चार्जेज को अगर हम वाटर में प्लेस कर दें, वाटर सेम टू चार्जेज, हेयर 10 कूलम चार्ज एंड हेयर 2 कूलम चार्ज placed in water, now placed in water separated by same distance r equal to 2 मीटर। तो वाटर के लिए एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होता है वो 80 होता है, 80। इसका क्यों कोई भी यूनिट नहीं होता, रिलेटिव परमिटिविटी इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। व्हाई इट इज यूनिटलेस, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द टू सेम थिंग, परमिटिविटी ओवर परमिटिविटी। तो जो भी इसका यूनिट होगा परमिटिविटी का यूनिट होगा, परमिटिविटी का यूनिट लिखा है ना कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल कैंसिल आउट, दैट्स व्हाई इट इज द यूनिटलेस। ओके, now how can we solve these questions when two charges 10 coulomb and 2 coulomb separated by distance 2 meter placed in the water में रखा हुआ, दोनों चार्जेस को पानी में रख दिए, तो दोनों चार्जेस पे कितना फोर्स लगेगा बताइए, दोनों चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो अच्छा मीडियम में रखा हुआ है तो मीडियम वाला फार्मूला लगा देंगे, F मीडियम इक्वल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 ओवर R², ओके। एंड 1/4πε0 का वैल्यू तो हमें पता ही है, 9 इंटू 10⁻⁹, दिस इज द 9 इंटू 10⁻⁹, एंड ओवर एप्सिलॉन r फॉर द वाटर इज गिवन, दिस इज द 80 एंड इंटू Q1 इंटू Q2, 10 कूलम इंटू 2 कूलम, दैट मीन्स 20 कूलम over R², separation is 2, a square of this is 4, this much Newton। तो अब बताइए आप, पानी में फोर्स घटा की बढ़ा, एयर में फोर्स कितना आया, पानी में कितना आया, देखिए इतना में 80 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स फोर्स घट गया, फोर्स क्या हो गया, घट गया। F मीडियम इज लेस देन द F एयर, एंड कितना टाइम से लेस होगा, 1/80 टाइम से लेस होगा। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। कूलम्ब्स लॉ इज नथिंग, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कुलम्स लॉ, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम से तो आईआईटी में भी क्वेश्चंस पूछा गया है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब फोर्सेस। ओके, तो देखिए सो सिंपल, एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, ये निकल के आया। बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर क्या है, एफ एयर ही तो है। सो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर इज द एफ एयर ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन r। सो एफ मीडियम इज 1 epsilon r times a smaller force than the force between two charges in air. So you can remember this formula। यार याद क्या रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना। F medium is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 over r square is the F air and epsilon r। Okay, this is the relation between same two charges placed in air and same two charges placed in the medium by the same separation। Okay, that's is the Coulomb's law is nothing। Okay, तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसे आ भी गया होगा आपको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे Coulomb's law in vector form and after that सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो Coulomb's law in vector form वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बच्चे पूछते हैं कि सर Coulomb's law in vector form हमें समझ में नहीं आया, हमने बुक से पढ़ा तो हमको समझ में नहीं आया। एक्चुअली बुक से आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपने भी ट्राई किया होगा Coulomb's law इन वेक्टर फॉर्म। ओके, एंड उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक ही न्यूमेरिकल करेंगे या दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, एक अट्रैक्शन के लिए एंड एक रिपल्सन के लिए सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।